Yeah, good morning, everyone. In the last class, we started talking about the concept of permutation, followed by two, three important theorems. I'll quickly recap what we did in the last class. The number of permutation of n objects where p objects are of the same kind. In that case, the total number of permutation would be n factorial divided by p factorial. तो रिपीटिशन के फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस को. And for that, everyone please focus on example number 9. Check this out. Example 9. Find the number of permutations of the letters of the word Allahabad. So Allahabad, total number of words, you can check it out. There are 9 total alphabets here, in which A is repeating 4 times and L is coming 2 times. So total number of possible permutation when all the words are taken into consideration, that would be 9 factorial. Total number of words जितने हैं, alphabets, divided by repetition. A का 4 times हुआ है, L का 2 times हुआ है. तो उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, which is your required answer. Of course, you need to solve this expression. Factorial अब आप सभी को solve करना आता है. Then, in fact, that was the last question जिस पे हम रुके थे. Check this out. It's a lot of mess over here, so let me do one thing. Let me erase everything from here. And I'll solve this question once again, because this is a very important type of a question one need to understand. Please check out this question. Find the number of different 8-letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter. So we have DAUGHTER. So I can see there are total how many alphabets? 8. Right. So if there is no restriction, clearly total number of permutation would be 8 factorial. There is no repetition, so answer 8 factorial ही रहेगा. But अब condition साथ में लगा दिया है, all vowels occur together. तो मैं अब इसमें vowels को भी देख लेता हूँ कौन कौन से हैं. A, U and E. तो ये 3 vowels हैं यहाँ पर. So that is 3 vowels हैं. So बचे हुए consonants हो गए. They will be 5. Now let us focus on the first part. तो first part में कह रहे हैं vowels are all together. Together का मतलब A, U, E. मैंने इसे एक सिंगल एलिमेंट एक तरह से assume, ये सिंगल अल्फाबेट मान लिया. अब इसके एक साथ होने से रिमेनिंग कितने अल्फाबेट बच चुके हैं? 5 हैं एज अ कॉन्सोनेंट. तो प्लेसेस कितने क्रिएट हो गए? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. 1, 2, 3, 4, 5, 6. वाई? क्योंकि AUE मान लो यहां पर एज एन सिंगल अल्फाबेट यहां आ गया, तो बाकी बचे हुए कॉन्सोनेंट ये 1, 2, 3, 4, 5. तो आई हैव 6 प्लेसेस एक्चुअली. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 places are created. अब 6 places can be filled in 6 factorial ways. क्योंकि रिपीटेशन नहीं है तो इसलिए ये तो 6 factorial हो गया. बट एट द सेम टाइम टू रिमेंबर AUE, ये आपके 3 वॉवल्स भी तो आपस में म्यूचुअली 3 factorial ways में अरेंज हो सकते हैं. So this will be your required answer. So one need to understand the logic carefully. और मैंने यहाँ fundamental principle of
काउंटिंग अप्लाई किया है, जिसमें हमने टोटल यहाँ की पॉसिबिलिटीज को देख लिया 3 फैक्टोरियल और टोटल प्लेसेस की 6 फैक्टोरियल। ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए, तो एंड रेफर टू द मल्टीप्लीकेशन वाला केस। अब ये ए यू ई है, वॉवल एक साथ होने चाहिए, तो ए ई यू भी हो सकता था, यू ए ई भी हो सकता था, यू ई ए भी हो सकता था, एंड सो ऑन। तो ये केसेस एक्चुअल में आपके 6 केसेस बनते हैं, विच इज योर 3 फैक्टोरियल। एनी डाउट टू एनीवन, प्लीज डू लेट मी नो, क्योंकि ये बहुत जरूरी स्टेप है समझना इस क्वेश्चन का। और रिमेनिंग जो हम आगे बात करेंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल फॉलो द सिमिलर काइंड ऑफ अ वर्किंग। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, जस्ट द रिवर्स ऑफ इट। इन सेकेंड पार्ट इट्स सेइंग ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो आप चेक करिए, वो कॉमन सेंस की बात है, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, टोटल परमुटेशंस जितने हो गए, टोटल परमुटेशंस में से माइनस कर दो व्हेन ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। थिंक लॉजिकली, पहले पार्ट में था ऑल वॉवल टुगेदर, सेकंड पार्ट में ऑल वॉवल डू नॉट अकर टुगेदर। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस हमें पता है, सॉरी वो 8 फैक्टोरियल होंगे इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। इन दैट केस देयर विल बी ओनली 8 फैक्टोरियल, वो हम देख ही चुके थे। और फिर माइनस कर दिया जो मेरा फर्स्ट पार्ट में आंसर आया है, 6 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई, विल गेट आवर रिक्वायर्ड आंसर। Please make a note of it, and more important is understanding of the concept. Just to save the time, I'm not writing the complete statement, I'm just explaining that verbally, but you definitely need to give the reason that 3 फैक्टोरियल कहां से आ गया है ये AUE। तो उसमें आप बताएंगे 3 vowels can themselves arrange in 3 factorial ways। Therefore, the total number of permutations वो आ गया था पहले वाले केस में 6 factorial into 3 factorial. But if it is say in the form of MCQ, of course your choice. Before we move on further, please mark your attendance, everyone. Okay, so exercise 7.3 in homework, still in homework, I'm not going to solve these questions. They are very basic and fundamental questions. For few questions, I'll be providing you with the solutions altogether so that you can easily understand. All these concepts have already discussed. इस क्वेश्चन में लॉजिक की बात करी है वर्सेस द फॉर्मूला बेस्ड। तो एक मेथड यहां तक सिंगल इसमें ही आंसर आ चुका है, और मेथड ये फॉर्मूला से है। तो ऑफ कोर्स वी वुड प्रेफर द ऊपर वाला अप्रोच। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एट योर ओन एंड फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इफ यू हैव एनी। अगेन इवन नंबर फॉर्म होना है, हम ऐसे केसेस ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनफैक्ट इन द वेरी फर्स्ट और सेकंड क्लास। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं एवरीवन। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स
that can be formed using the digits 1 2 3 4 5 if no repetition is allowed. तो रिपीटिशन नहीं है तो इसका मतलब आई कैन अप्लाई परमुटेशन. याद रखिए एनपीआर ये मैं बता चुका हूं, ये कब वैलिड हो रहा है, व्हेन देयर इज नो रिपीटिशन. राइट, रिपीटिशन नहीं है. तो अब मैंने क्या नोटिस करा, 4 डिजिट नंबर फ्रेम करना है, 4 डिजिट नंबर, और डिजिट्स कितनी अवेलेबल हैं, 5. तो 5 डिजिट्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 डिफरेंट प्लेसेस in 5p4 ways, which is actually 120. वो यहां सॉल्व करके बता दिया है. सेकेंड पार्ट को बहुत ध्यान से समझिए, क्या कहा गया है. हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन. अब इवन की बात करिए तो आप चेक करिए, मैं अलग से यहां फिर से लिख देता हूं. जैसे ये 4 डिजिट नंबर है, इवन होने का मतलब इसके पास अब कितनी चॉइसेस हैं, या 2 आ सकता है या 4 आ सकता है. 2 और 4 कैन बी हियर. तो दिस हैज गॉट 2 चॉइसेस ओनली. इसके पास तो 2 चॉइसेस हैं. अब लॉजिक लगाइए, ये 3 प्लेसेस हैं और डिजिट्स मेरे पास 4 अवेलेबल है, क्योंकि एक कोई ना कोई यहां यूज हुआ होगा एट अ टाइम. या तो यूनिट प्लेस के ऊपर 2 आया होगा या 4 आया होगा. तो डिजिट्स टोटल मेरे पास एक कम हो गई आउट ऑफ अवेलेबल 5 डिजिट्स. तो 4 डिजिट्स हैं, 3 प्लेसेस हैं, 4p3. तो इतने वेज हो गए यहां के लिए, और इनटू इसके पास 2 चॉइसेस थी, या जिसको हम 2 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं. So that is your required answer. Any doubt to anyone? Straightforward question for your homework. Another very simple question for your homework. तो यहां तक तो मैंने कल की स्लाइड में दिखा ही दिया था. Consider this. चलिए, check this out. How many words with or without meaning can be formed from the letters of the word Monday? MONDAY. So पहला स्टेप मैंने ऑब्जर्व करा, देयर इज नो रिपीटिशन. सो टोटल मेरे पास 6 अल्फाबेट्स हैं, और बाद में बात करी गई है, ओके, वॉवल्स के ऊपर बेस्ड नहीं है. तो कह रहे हैं अज्यूमिंग नो लेटर इज रिपीटेड, और हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म. तो 6 अल्फाबेट है, तो 6 में से क्या फर्स्ट पार्ट में बताया गया है, 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम. 6 लेटर में से 4 लेटर्स को यूज करना है. योर रिक्वायर्ड आंसर. और लॉजिकली कैसे सोचते हैं, आपको 4 लेटर का वर्ड बनाना है. पहले वाले के पास 6 चॉइसेस हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है. इसके पास 5 बच गई, इसके पास 4 बच गई, इसके पास 3 बच गई. So both are giving you the same answer, of course. Second part, all letters are used at a time. So what will be the answer, anyone? If all letters are used all together. So 6 factorial. Great. So this is simply 6 में से 6 यूज करने हैं, which is actually 6 factorial.
अब ऑल अल्फाबेट्स यूज करने का मतलब मुझे ये केस बन गया, 6 प्लेसेस हैं। अगर आप लॉजिकली सोचना चाहते हैं मतलब फार्मूला पी को अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ इसके पास 6 चॉइसेस, 5 एक एक कम होते रहेंगी क्योंकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, एंड दिस प्रोडक्ट इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है, थर्ड में, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल। ओके, वॉवल वाला केस आ गया, तो वॉवल को अगर मैं काउंट करूं यहां पर, वो कौन कौन से हैं, ओ एंड ए। सो टोटल मेरे पास वॉवल्स अवेलेबल 2 हैं। अब मुझे क्या करना है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड, इसका मतलब 6, तो ये प्लेसेस हो गए 1 2 3 4 5 6। बट अब कह रहे हैं फर्स्ट लेटर वॉवल होना चाहिए। फर्स्ट के पास या ओ आ सकता है या ए आ सकता है, तो इट हैज गॉट 2 चॉइसेस। अब सोच के देखिए, आपके पास MONDAY, इस प्लेस पे एक टाइम पे कोई एक ही अल्फाबेट यूज हुआ होगा, तो मान लो मैंने एज्यूम कर रहा हूं कि चलो ओ यूज हो गया। अब बचे हुए ये 5 प्लेसेस के ऊपर 5 अल्फाबेट्स अवेलेबल हैं, सिंपली 5P5, दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, 2 चॉइसेस यहां वाली, और अगले हो गई 5 फैक्टोरियल, योर रिक्वायर्ड आंसर। Any step which is not clear? Believe me on this, even a 8th 9th student can understand this, और 12th वाले को भी समझ नहीं आए ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि it require a common sense understanding and a logic। तो लॉजिक अगर आपने उस चीज को समझ लिया कि इतने प्लेसेस यूज हो गए, इतना पेंडिंग है, we can easily solve such questions। Any doubt to anyone? Yes, चेक दिस आउट। अब इस क्वेश्चन में पहले पढ़कर देखिए क्या कहा गया है। अगेन लेट मी डू वन थिंग, ये सिर्फ मैंने इतना चीज जो इजी वाली जो रिक्वायर्ड है वो मैंने यहाँ छोड़ दिया है। अभी चेक करिए क्या कहा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स बता दिया था ना, परमुटेशन रेफर्स टू अरेंजमेंट। तो एक तो ये एनपीआर का क्वेश्चन होगा, इतने से आइडिया रखिए, बाकी आगे पढ़ेंगे और समझ आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, ये मैंने लिख दिया इंडिपेंडेंस यहाँ, और फिर बाद में कह रहे हैं इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड स्टार्ट विथ वी पी, डू ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, वॉवल नेवर अकर टुगेदर, एंड सो ऑन। तो मैंने वॉवल्स को हाईलाइट कर लिया, 1 2 3 4 5 वॉवल्स हैं, और उन 5 में भी ई आ रहा है 4 बार और आई है 1 टाइम्स। तो टोटल अल्फाबेट थे 12, और उनमें भी मैंने रिपीटिशन को लिख लिया, एन इज कमिंग 3 टाइम्स, प्लीज काउंट दैट, एन इज कमिंग 3 टाइम्स, डी इज कमिंग 2 टाइम्स, एंड ई इज कमिंग 4 टाइम्स। Actually, the board exam is going on simultaneously, तो वो भी चीजें बीच में एकदम से आ जाती हैं।
एनीवे कह रहे हैं फाइंड दी नंबर ऑफ परमुटेशंस, सॉरी अरेंजमेंट्स। तो उसको पार्ट 1 कुछ भी नहीं कहा है, तो ओवरऑल अगर मैं यहां बात करूं तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड आंसर, एनीवन? विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन अगर मैं बात करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 12 अल्फाबेट थे, 12 फैक्टोरियल तो वो आ गया, बट अब रिपीटिशंस भी तो हुई हैं अल्फाबेट्स की। n आया है 3 टाइम्स, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड, d इज 2 टाइम्स, e इज 4 टाइम्स। योर रिक्वायर्ड आंसर। तो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन अगर बात करी जाए कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कितने बन सकते हैं, वो ये होगा। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पर, क्या कह रहे हैं? डू द वर्ड स्टार्ट विद P, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये लो, ये P से शुरू होना है वर्ड, और टोटल मेरे पास 12 अल्फाबेट थे, 12 में से P तो मतलब एक प्लेस खत्म हो गया, कितने बच गए? 5 6 7 8 9 10 11 प्लेसेस बच गए। थिंक लॉजिकली। अब ये P फिक्स है, फिक्स का मतलब इसके पास कोई चॉइस नहीं है, एक ही ऑप्शन है कि यहां P आ गया। अब जरा हम इन 11 प्लेसेस पे फोकस करते हैं। 11 places can be filled in how many ways? 11 factorial, बट यहां रिपीटिशन हुई है कोई? n की हुई है, d की हुई है एंड e की हुई है। योर रिक्वायर्ड आंसर 1 इंटू ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो वो तो यही रहने वाला है। I'm waiting for you to understand this fundamental concept. सेकेंड पार्ट में देखिए क्या कहा है। सेकेंड पार्ट, डू ऑल दी वॉवल्स अकर टुगेदर। वॉवल्स मैंने यहां लिख दिए थे, 5 वॉवल्स है। अकर टुगेदर का मतलब ये ई एंड देन आई। वॉवल एक एलिमेंट मान लिया, तो अब आपके पास टोटल 12 अल्फाबेट थे, 12 में से ये 5 निकल गए, तो कितने बच गए प्लेसेस? बचे हुए रह गए 12 माइनस 5 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ना इसके पास कितनी चॉइसेस हैं? अगर आप ई आई को ध्यान से देखें, आपस में 5 फैक्टोरियल वेज हैं, बट E इज रिपीटिंग 4 टाइम्स, उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, इनटू। अब अगर आप ध्यान से देखें तो प्लेसेस कितने टोटल क्रिएट हो गए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस हैं, बट अब इनके अंदर रिपीटिशन भी तो हुई थी। N की हुई थी 3 टाइम्स, D की हुई थी 2 टाइम्स, E की रिपीटिशन वो हम यहां ऑलरेडी ले चुके हैं इस ऑर्डर्ड पेयर में, तो यहां इसीलिए E नहीं आएगा, ये याद रखिए। योर रिक्वायर्ड आंसर। यस, एक्सप्लेनेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। वो मैं लिख नहीं रहा हूं इन स्टैंडर्ड, ये एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जांपल है। चेक आउट द वे दे आर राइटिंग इन द बुक, बट एट द सेम टाइम द वे आई एम स्पीकिंग, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में फ्रेम करना है, बिल्कुल करना है। डायरेक्ट इतना नहीं करना है, आपको बिल्कुल बताना है कि पहला वाला
क्यों मैंने 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल लिखा है कि e is coming repeating 4 times, so therefore the total number of permutation यहां बनेंगे 5 factorial by 4 factorial. Now I is considered as one pair, so total places are 8, so 8 places can be filled in 8 factorial ways, but since n is repeating thrice and d is repeating twice, therefore the total number of permutations will become 8 factorial by 3 factorial into 2 factorial. Therefore the total number of permutations will be, तब आप ये फाइनल आंसर बता रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, अगर आपको ये कैलकुलेट भी करना पड़े तो वो करना है, ये इजी कैलकुलेशन है, इट्स नॉट डिफिकल्ट. नेक्स्ट चेक करिए क्या कहा गया है. थर्ड पार्ट, आई थिंक वो तो बहुत इजीली कर लेंगे. वॉवल नेवर अकर टुगेदर, तो नेवर अकर टुगेदर का मतलब टोटल केसेस जितने भी बनेंगे उसमें से माइनस वॉवल्स आर टुगेदर. व्हाट विल बी माय आंसर? टोटल कितने केसेस थे, ये सबसे ऊपर निकाल दिया था विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, वो तो ये थे, और इसमें से माइनस कर दो जब वॉवल टुगेदर है, तो वो सेकेंड वाला पार्ट आ गया, वॉवल टुगेदर वाला. सो दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं? डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड विद पी. देखो यहां एंड विद पी और बिगिन विद आई 12 अल्फाबेट थे टोटल, तो भाई बीच में 10 प्लेसेस आएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गए. आप एक तो ये ध्यान रखो, आई एंड पी उनकी रिपीटेशन नहीं है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन इजी है. तो इनकी रिपीटेशन नहीं है, एक एक ही थे, वो फिक्स हो गए. तो अगर ये फिक्स हो गए, इसके पास एक चॉइस है, इसके पास एक ही चॉइस है. बट अब अंदर जो प्लेसेस क्रिएट हो गए 10 प्लेसेस 10 फैक्टोरियल, रिपीटेशन किस किस की हो गई? एन, डी एंड ई. दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर. Speak up if you have any doubt or you are not clear with this. इसी तरह के क्वेश्चंस यूजुअली आप एक्सपेक्ट करते हैं स्कूल एग्जाम्स में या इवन व्हेन इट्स अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. मैं इसी क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा पार्ट आपसे पूछ रहा हूं. लेट्स सी हाउ फार यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. फिफ्थ पार्ट, do word begin with N and end with P. थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, बट अब इससे कंसेप्ट ध्यान से सोच के, ये वर्ड बिगिन विद N and end with P, राइट? 10 places, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Anyone? What will happen now? Can anyone answer? क्या फर्क पड़ेगा इसकी वजह से? So we multiply 3p1. किससे करेंगे? So the fourth part answer. हाँ, मैं फिफ्थ का नहीं, फोर्थ पार्ट से कुछ फर्क है आंसर. ऊपर तो क्लियर है कि ये आएगा 10 प्लेसेस दे कैन बी फिल्ड इन 10 फैक्टोरियल वेज. अब आपको डिवाइड किससे करना होता है? रिपीटिशन से. याद रखिए n 3 टाइम्स था,
बट एक n तो यहां फिक्स हो चुका है, तो अब n जो है मेरे पास दो बचे हुए हैं। एक फिक्स हो गया तो ये n दो बच गए, बाकी d मेरे पास दो थे और e भी 4 है। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ऊपर वाले केस में i था और i एक ही था, तो n तीन अवेलेबल थे, वो तीनों के फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। इस केस में एक n ऑलरेडी यूज हो चुका था यहां पर, इसीलिए एक n का रिपीटिशन खत्म हो गया, तो आउट ऑफ 3 दो n बच जाएंगे। So I can go on adding the more parts. The words start with N and end with E. तो E का भी मैंने अब एक रिपीटिशन कम करवा दिया है, तो वो 4 फैक्टोरियल की जगह नीचे 3 फैक्टोरियल आ जाता, समथिंग लाइक दैट, दैट्स इट। Check out the question. In how many of the distinct permutations of the letters of the word Mississippi do the 4 I's not come together? सबसे बेसिक चीज तो वो ये भाई, मैंने टोटल लेटर काउंट कर लिए, मिसिसिपी में 11 है, और उसके बाद मैंने रिपीटिशन को देखा, आई 4 टाइम्स है, वो इन्होंने 4 आईज की बात करी दी थी, और साथ ही साथ एस इज कमिंग 4 टाइम्स, पी इज कमिंग 2 टाइम्स। ये तो गिवन बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपने कर लिया। अब अगर आप फर्दर देखें, फॉरगेट अबाउट क्वेश्चन में क्या पूछा है, without any restriction, how many total permutations or arrangements are possible? Please be sure कि ये आपको क्लियर है कि टोटल परमुटेशंस कैसे लिखे गए। I'm focusing throughout since beginning on this only कि आपने 11 लेटर्स हैं, 11 फैक्टोरियल आ गया, डिवाइडेड बाय रिपीटिशंस के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ये तो टोटल परमुटेशन आ गए, बट अब हम चाहते क्या है, अब आते हैं क्वेश्चन पर कि 4 आईज नॉट कम टुगेदर। सबसे पहला काम क्या करते हैं, लेट 4 आईज आर टुगेदर, आईज आर टुगेदर। मैं रिवर्स वे में इसे सॉल्व करूंगा। 4 आईज आर टुगेदर का मतलब आई 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 आई, ये एज अ पेयर एक एलिमेंट मैंने मान लिया। अब होगा क्या, 4 तो इसने एक साथ एक एज एन एलिमेंट आ गए, 11 टोटल लेटर थे, 11 में से ये 4 गए, कितने बच गए, 11 में से 4 गए 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। बट इनकी वजह से टोटल प्लेस कितने क्रिएट हो गए हैं, एक ये भी है, इसको मत भूल जाना, तो 7 + 1 8 प्लेसेस बन गए। 8 places can be filled in 8 factorial ways, बट इसमें रिपीटिशन भी तो हुई है। आई एज अ पेयर आ चुका है, ये याद रखिए, तो आई आपस में म्यूचुअली एक ही वे में कर सकते हैं ट्रांसफर, तो इनमें तो एक ही वे है, तो अब रिपीटिशन किसका था, एस वॉज रिपीटिंग 4 टाइम्स एंड पी इज रिपीटिंग 2 टाइम्स। तो व्हेन ऑल आईज आर टुगेदर, तब तो इतने नंबर ऑफ वेज पॉसिबल हैं। देयरफॉर व्हेन 4 आईज आर नॉट टुगेदर, वो क्या हो जाएगा,
कॉमन सेंस, टोटल परमुटेशंस में से माइनस कर दो व्हेन 4 eyes are together, रिवर्स थिंकिंग। और टोटल परमुटेशन ये लिख चुके थे हम यहां पर, माइनस कर दिया when 4 eyes are together. Simplify, you'll get your required answer. To save the time मैं इन फैक्टोरियल्स को सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बट आप याद रखिए एग्जाम के अंदर आपको इनकी वैल्यूज को पूरा सॉल्व करना है। फाइनल आंसर मस्ट बी अ सिंपल नेचुरल नंबर। Any doubt to anyone? And here comes the last question. पहले मैं इजी वाला बस ले रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन ये वाला, चेक दिस आउट। Find the number of ways in which 5 boys and 3 girls can be arranged. एक कीवर्ड है ना, अरेंज्ड आ गया तो परमुटेशन माने n फैक्टोरियल का केस है। Arranged in a row so that no 2 girls are together. No 2 girls sit together. तो लॉजिकली सोचे क्या हो जाएगा भाई, 5 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं, तो हम पहला काम क्या करते हैं, गर्ल्स को सेपरेट करना है, हम पहले बॉयज को बिठा देते हैं। तो मैंने ये देखो, ये बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4 एंड बॉय 5, 5 बॉयज को बिठा दिया। अब इनके बैठते ही क्या हो जाएगा, इसको देखकर ये थोड़ा ना दिक्कत ही लगेगी, लेट मी सॉल्व इट हियर। आपके पास देखिए क्या हो गया, 5 बॉयज हैं एंड 3 गर्ल्स हैं, तो मैं क्या करता हूं, बॉयज को पहले बिठा देता हूं, बॉय 1 2 3 4 5, ताकि अब अगर इन पोजीशंस की बात करें, यहां पर अब गर्ल्स बैठ सकती हैं, और ये पोजीशन गर्ल्स बिठा दी तो उसमें वो अलग अलग हो गई हैं। तो अब जरा लॉजिक लगाइए, बॉयज के पास कितने वेज हैं बैठने के, ये 5 बॉयज कैन बी सिटेड इन 5 वेज, तो ये तो बॉयज के पास टोटल वेज हो गए। गर्ल्स के पास कितने वेज हैं, एनीवन, क्विकली सोच के बताइए, गर्ल्स के पास कितने वेज हैं बैठने के लिए? 1 place, 2 place, 3 place, 4 place, 5 place, 6। Yes, 6 places हैं और 3 girls हैं। They can be arranged in 6p3 ways. So total कितने हो जाएंगे ways? Boys को बिठा दो and girls को बिठा दो। Your required answer. Mark your attendance. And then you can leave the class, but please do practice on the same day and join the class regularly. And if in case you have any doubt, always you can see the video recording is available. Thank you, sir. Have a good day, sir. Yeah, thank you. God bless you all. Take care. Bye. Thank you, sir. Yeah, thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Have a good day, sir. Thank you. Good day. Bye. Praveen, Halokna, Siddharth, Aditya Raj, Shivang, Niranjan, waiting for you to leave the class.